Welcome to you in sixth lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid. इससे पहले हम लोगों ने aldehyde ketones की preparations पढ़ रखी हैं, aliphatic aldehyde ketones की और aromatic की. Now we go some topics: physical properties of aldehyde ketones, now mechanism of nucleophilic addition in carbonyl compounds, and reactivity order of nucleophilic addition in carbonyl compounds, especially in the aliphatic compounds. Now comparison of reactivity of aromatic aldehyde and ketones towards nucleophilic addition and carbonyl compounds are as meta-directive. Clear? In aromatic compounds. In aromatic compounds. Now we go. First topic. First we go physical properties. Clear? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग जाएंगे फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर. ठीक, we study two factors: physical states and order. See there, for lower members like formaldehyde, acetaldehydes and acetone. Clear? This formaldehyde, acetaldehyde, acetone. IUPAC name is methanol, ethanol and propanol. Clear? These are volatile liquids. These are volatile liquids. Clear? All of three. All of three are volatile liquids. Clear? And their formaldehyde at some high temperature will be in the gaseous state. Now, next thing, they are formaldehyde and acetaldehyde. Okay? These have pungent smell. Pungent smell means नाक में जलन पैदा करने वाली, ठीक है ना, तीक्ष्ण गंध होगी, pungent smell. And acetone, that is propanol, has pleasant smell. Clear? It has pleasant smell. Now, अब ये कि थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग. These are volatile liquids, while further up to C11 compounds. These compounds have 11 carbon atoms, are less volatile liquids. जैसे हम लोग आगे चलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स राइज करेंगे, वोलेटिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर? ये हाईली वोलेटाइल थे, ये बहुत ही लेस वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, ये ध्यान रखेंगे. अब यहाँ पे जो लोअर मेंबर्स हैं हमारे पास में एल्डिहाइड कीटोन्स के, उनमें थोड़ा पंजेंट स्मेल होती है, मगर जो हायर होते हैं, स्पेशली आपके जो कीटोन्स हायर से आपके, ठीक है ना, उन्हें प्लीजेंट और फ्रेग्रेंट स्मेल होती है. ठीक है ना? जो हायर मेंबर्स हैं हमारे पास में, ठीक, जो हायर मेंबर्स के लिक्विड्स हैं, ठीक, दे आर मोर फ्रेग्रेंट. क्लियर? दिस आर मोर फ्रेग्रेंट and used in blending perfumes and as flavoring agents. Clear? हायर मेंबर्स में प्लेजेंट स्मेल होती है, फ्रेग्रेंट होते हैं आपके, ठीक है ना, और ये ब्लेंडिंग परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज होते हैं. ठीक है ना? जो आपके परफ्यूम्स होते हैं स्प्रे करने वाले, उनमें आपके यूज होते हैं. क्लियर? नाउ फर्दर C11 से आगे चले हम लोग, फिर सॉलिड्स हैं हमारे पास. क्लियर? C12 and onwards
are solids. C12 and onwards are solids. फिर हमारे solid हो जाएंगे. ये हम लोगों ने physical state और साथ में odor के बारे में बात की. Now we go next physical property, boiling point. Now we go boiling point. इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जो आपके करस्पॉन्डिंग या सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे अधिक होते हैं, इच्छा से भी अधिक होते हैं, बट अल्कोहल से कम होते हैं. ठीक है, उसका रीजन क्या है आइए वो देखते हैं. ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे. आइए इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के विषय बात करते हैं. यू नो कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका पोलर ग्रुप होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर देन कार्बन. सो व्हाट हैपेंस, pi electron pair shifts on oxygen, by which on the oxygen atom negative charge is developed and on the carbon positive charge is developed. In this way you can say in this way. First displace हो जाते हैं आपके in this way. Now carbonyl group becomes polar. Carbonyl group polar nature का होता है. अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है चूंकि नेगेटिव है, नियरेस्ट कार्बोनिल ग्रुप के जो पॉजिटिव कार्बन है उसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस वे. क्लियर? ये जो आपका शो किया डॉटेड लाइन से हमारे पास में क्या है, इट इज द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और यू कैन से इंट्रैक्शन. Due to this polar nature, negatively charged oxygen attracts positively charged carbon of the nearest carbonyl molecule, by which dipole-dipole interaction is produced. Clear? So, two carbonyl groups attract to each other and associated, by which what happens? Boiling point rises, boiling point increase. Clear? अब इसी कारण ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंट अल्केन्स वगैरह से कंपेयर करें. ठीक, सपोज मान लीजिए हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन ले लेते हैं. ठीक, एज एन एग्जांपल ऑफ अल्केन. नाउ यू टेक ether, like take methoxy ethane, it is an ether. Now you take next compound propanol, it is an aldehyde. Now you take propanone, it is a ketone. Now also take one alcohol like propanol 1. Propanol 1. Clear? It is an alcohol. ये हमने जो लिए हैं आपके अबाउट सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के लिए. सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट करिएगा. इट कम्स 58. इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करिए 60 आएगा. इसका फाइंड करिए 58 है and molecular weight is 60. These are molecular weight. Clear? Molecular weights. Similar molecular weights के हम लोगों ने different compounds लिए हैं. यहाँ boiling point देखें, rise करेगा in this direction. This is increasing order of boiling point. Clear? Increasing order of
बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ बहुत कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा बढ़ता चले जाता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ने का। अब जो प्रोपेनॉल वन है हमारे पास में, यहाँ क्या होता है? यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। जबकि यहां पर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा था। ध्यान रखें हमारे पास। क्लियर हो गई बात? अब एक बात खास देखें, हम लोग यहां पर जो है एल्डिहाइड कीटोन्स की खाली बात करें, जैसे CH3 CH2, इनकी बात करें हम लोग यहाँ पर, ये आपका प्रोपेनॉल है और ये प्रोपेनोन है। इनमें हमारे पास में आपके जो कीटोन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अधिक होता है, ये ध्यान रखेंगे हमारे पास। ठीक? क्यों होता है? रीजन, इसमें इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। जितना अधिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा उतना हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैसे होता है आइए वो देखते हैं। ध्यान दें, यहां पर हमारे पास C और H है, इनके बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर यहां पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे पास में। केवल ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहां पे प्लस आई इफेक्ट दोनों से शो हो रहा है हमारे पास ये। ठीक? तो प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर इन दिस केस। यहां एक तरफ कार्बन H के बीच में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, बट दे आर इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रेजेंट ड्यू टू अल्काइल ग्रुप्स। अब अल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप है। क्लियर? ऐसे में हमारे पास में क्या होगा? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन और अधिक डिस्प्लेस होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ इनके बीच में पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक? तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, due to electron repelling nature of alkyl groups, polarity increases in ketone. So boiling point also increases due to increasing dipole-dipole interaction. Margo, solubility. Lower aldehyde ketones are soluble completely in water. Why? What is the reason? You see in this way. Lower aldehyde ketones are miscible in the water in all proportion. You know why? Carbonyl group gives hydrogen bonding with water molecule in this way. देखिए ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन और H के बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. This H of water also makes hydrogen bond with oxygen of carbon. So it is a hydrogen bonding. Clear? Due to this hydrogen bonding, low aldehyde ketones are miscible in water, but higher not. Why? क्योंकि higher में क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा हमारे पास, वो वाटर को रेपेल करता है. इसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर होता है. So higher aldehyde ketones are not miscible in water. Clear? Now we go next topic. We go nucleophilic
एडिशन की मैकेनिज्म बात करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Aldehyde ketones easily give nucleophilic addition. You know why? See here. Suppose this is a, if you see only CO group, it is a planar. Clear? Due to polarity, oxygen has negative charge and carbon has positive charge. When nucleophile attacks, suppose मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल हमने ऐसा ले लिया है, this is a nucleophile. It gives, clear? ये न्यूक्लियोफाइल पक्का हो गया और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का बात कर रहा है। When nucleophile attacks, due to electron lone pair, it attacks on center where electron are less. That's positive center. Then what happens? It forms ये न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड हो जाता है इन दिस वे। हियर अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन बॉन्ड आपके हो सकते हैं। दिस फॉर्म्स टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट tetrahedral. It is a slow reaction, slow step the reaction, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये ऐड हुआ है। Now further, this is electrophile जो सेंटर पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। Now further H plus, which behaves as electrophile attack and fastly gives addition product in this way. This is addition product. Clear? अब डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर आइए देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स, आइए देखते हैं। ये ऑर्डर में है। This is a reactive order of decreasing order. Decreasing order है इस डायरेक्शन हमारे पास। This is a decreasing order of reactivity. Decreasing order of reactivity. ये ऑर्डर क्यों है, क्या उसका रीजन है? या टू रीजंस। इसमें किस ऑर्डर में है और क्यों है, उसका दो रीजन है।
पहला हमारे पास में प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। बड़े सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव चार्ज। अब देखें बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर, ध्यान दें। यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कहां अटैक कर रहा है? पॉजिटिव सेंटर में। यदि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजी हो जाएगा, और ऐसे फैक्टर्स जिस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे वहां एक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे आई वो देखते हैं, क्लियर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, सो प्लस आई इफेक्ट इज 0। जैसे अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास बढ़ेंगे, ठीक, जब अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे, ये अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग नेचर के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक, अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास में है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इधर रेपेल करेंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा यहां पर? कम हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक। जितना अधिक अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना अधिक यहां पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कम होता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड नंबर इज द स्टेरिक इफेक्ट और हिंडरेंस इफेक्ट। स्टेरिक का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। स्टेरिक माने छुपा हुआ, ठीक है ना। हिडन, स्टेरिक की मीनिंग क्या होती है? हिडन, क्लियर है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास यहां CH3CH3, यहां C2H5 है, ठीक। यहां पर जो आपका अल्काइल ग्रुप है आपका, वो आपका कैसा है? बल्की ग्रुप आ गया, हैवियर ग्रुप है। जितना अधिक बल्की ग्रुप यहां पर आएगा, ठीक, उतना अधिक जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास में उसका अटैक कम हो जाएगा, उसको हमारे पास प्लेस नहीं मिलेगा इसके बल्की नेचर होने के कारण। तो जितना अधिक बल्की ग्रुप होगा उतना अधिक स्टेरिक इफेक्ट चारों तरफ फैलाव लेगा और इसके लिए हमारे पोजीशन नहीं मिलेगा, तो रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी। Now we compare activity of aromatic aldehyde and ketones। aromatic aldehyde ketones के बारे में बात करते हैं, उसमें ये आपका रीजन होता है। फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन से कंपेयर करते हैं, ठीक, वहां देखेंगे ये सिंपल का एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक कीटोन है, बेंजल्डिहाइड, ठीक, एसिटोफेनॉल एंड बेंजोफेनॉल। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी घटती जाती है। देयर आर टू रीजंस। पहला रीजन आपका है, आइए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक, वो आपका प्लस आर इफेक्ट, ठीक, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। क्या है? आईएस के बारे में बात करते हैं। और दूसरा भाई स्टेरिक इफेक्ट होगा, जितना अधिक आपका हायर ग्रुप बढ़ेगा हमारे पास, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, उतना हमारे पास एक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, और यहीं से हम लोग देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिव क्यों होते हैं, आर्थो पैरा क्यों नहीं होते हैं। आइए बात करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो जो आपका कार्बन ग्रुप होता है डीएक्टिवेटेड ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करता है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास में, ये आपका जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इधर की ओर डिस्प्लेस हो, सो रीजन क्या आपका क्या बनेगा, आइए वो देखते हैं हम लोग। जब इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस होंगे हमारे पास में, इस कार्बन की बॉन्डिंग ऑलरेडी पूरी है, व्हाट हैपेंस, this pi bond shifts on this side, so it becomes negative and in this way, यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, ठीक। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पर कौन सा पहुंच जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया है, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो कार्बन पर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लियर। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया, ये रेजोनेंस शो करता है। फर्दर एक कंडीशन होगी, इट डिबॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास इन दिस वे, ये कंडीशन। और जब इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करेंगे हमारे पास में, तो क्या होगा, यहां का पॉजिटिव चार्ज और यहां के इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे, उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, एंड सेम फिनोमेना अकर्स फर्दर इन द रिंग, ठीक। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स ऑन दिस साइड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नाउ देयर बिकम्स इन दिस कंडीशन पॉजिटिव चार्ज कम ऑन दिस पोजीशन, एंड आफ्टर इट फिर वही कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन आपका जो है फिर आपकी ये शिफ्टिंग होगी, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा इन दिस वे। नाउ व्हाट हैपेंस फाइनली, जब इलेक्ट्रॉन पर आपका इधर आएगा तो देखें ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे इधर आपका आएगा, ठीक, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, और कार्बन के पॉजिटिव होते ही यहां का जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का है नेगेटिव चार्ज, वो आकर के यहां बॉन्डिंग कर लेगा और ये कंडीशन आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट किया था तो एक्चुअली इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मगर पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, डिस्पर्स बेंजीन रिंग, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल नहीं है, तो इस कार्बन पर हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली नहीं हो पाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो एडिशन होते हैं वो कम देता है, तो एरोमेटिक केसेस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कहां दिखोगी, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि जो आर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर हमारे पास हर जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में कहां बढ़ेगी, मेटा पोजीशन पे, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स विल बी मेटा डायरेक्टिव, ये मेटा डायरेक्टिव होंगे, आर्थो पैरा प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेंगे, क्लियर। ये आज हमने आपसे जो है डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में खाली बातचीत की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्दर केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ओके। इसको एंजॉय करें, समझें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ओके।